Welcome to new lecture, Laplace Transforms. Laplace Transforms is very important in engineering mathematics. Definition: let f be a function of any variable t where t is strictly greater than 0 or t is defined for all positive values of t, then the Laplace transform of ft denoted by LFT, which is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus st ft dt, provided that the parameter s may be real or complex, provided that the parameter s may be real or complex variable or number. Once again, definition: let f be a function of t where t is strictly greater than 0 or defined, we can write here, defined for all positive values of t. Then the Laplace transform of ft can be written in this way, which is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus st ft dt, provided that the parameter s may be real or complex variable. In this case, here is a limit of e raised to power minus st ft where t varies to infinity must be finite. This is the existence of limit. But we are interested in definition. What is the definition of Laplace transforms? This is a very most important transforms used in higher engineering classes. So that's why all students are requested to clear all doubts related to this transforms. Hence, there are some elementary functions which we directly find the values of that functions. Number 1, Laplace transform of 1. What is this? This is equal to Laplace transform of 1, that is, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, f of t is replaced by simply 1. So that is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus st ft की जगह 1 आ जाएगा into dt. तो e minus st we find integration 0 to infinity e minus st dt where t vary from 0 to infinity. अब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन है, that is equal to e raised to power minus st, कोफिशिएंट ऑफ t is minus s, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और लिमिट्स को यूज़ कर लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी, और वेरी क्या कर रहा है, t वेरी कर रहा है. तो देयरफॉर माइनस एस इट कैन बी टेन एज माइनस 1 अपॉन एस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है लिमिट के. तो हेयर ई रेज टू पावर
माइनस एस टी, यहाँ पे लिमिट यूज कर लेंगे 0 to infinity, विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एस टाइम्स अपर लिमिट e raised to power minus s into infinity, that is e raised to power minus infinity, e raised to power minus infinity, minus lower limit e raised to power minus 0, that is e raised to power minus 0 plus 0, that is 0, which is equal to minus 1 upon s e raised to power minus infinity can be written as 1 upon e raised to power infinity. E raised to power infinity is infinity. So therefore we can write 1 upon e raised to power infinity minus e raised to power 0. Anything raised to power 0, that is equal to 1. E raised to power infinity. The value of e lies between 2 and 3. ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, तो कुछ नंबर है दैट इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव रेज टू पावर इन्फिनिटी दैट इज वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एस, 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ, दैट इज 0 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गए, ओवरऑल वी फाइंड 1 अपॉन एस. तो देयरफॉर Laplace transform of 1 equal to 1 upon s. ये फॉर्मूला आता है when f of t is replaced by 1. हमने पहले बोला f is a function of t, तो यहाँ पे अगर 1 है तो that is 1 upon s. यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है, जब हम Laplace transform of ft निकालते हैं, राइट हैंड साइड में फंक्शन 1 अपॉन एस दैट इज एस का बन जाता है. जैसे यहाँ पे 1 अपॉन एस आया, तो इट कैन बी रिटन एज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस. ये जो भी इनफाइनाइट लिमिट्स है और जो इंटेग्रल है, ओवरऑल दिस इज ए फंक्शन ऑफ एस. इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बार यहाँ पे भी देख सकते हैं. जैसे ही एफ टी को 1 रखा, राइट हैंड साइज इज रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन एस, और इट कैन बी रिटन एज एफ बार एस, फंक्शन ऑफ एस. यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एस आ गया, तो देयरफॉर एफ ऑफ टी यहाँ से निकाल सकते हैं हम, लैप्लास इनवर्स एफ बार एस, जैसे मैट्रिसेस के केस में करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे लैप्लास इनवर्स कर दिया, एफ बार एस, एफ टी यहाँ से निकल गया. तो यहाँ पर व्हाट इज एल? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एल को क्या कहेंगे हम? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, और एल इनवर्स इज इनवर्स ऑपरेटर. वी कैन राइट एल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर. इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, उसको हम कहेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स. पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से करेंगे सिंपल तरीके से, इसका यूज करके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस. यहां से शुरू करते हैं. अब फॉर्मूला नंबर सेकंड देखते हैं. लेट एफ टी इज रिप्लेस्ड बाय टी रेज टू पावर एन. अब फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें. एफ टी इक्वल टू टी रेज टू पावर एन. तो वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus st ft dt. तो ft simply replaced by t raised to power n. We can write 0 to infinity e raised to power minus st t raised to power n dt.
अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन पूरी करनी पड़ेगी और इंटीग्रेशन भी आइलेट फॉर्मूले से करनी पड़ेगी। इसका फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट नंबर आएगा, इसका सेकंड आइलेट से। तो देयरफॉर, और यहाँ पे एक दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एस और टी दो आपके पास वेरिएबल्स है, एक साथ प्रोडक्ट हो रहे हैं, इसको कुछ मानना पड़ेगा। लेट पुट एस टी इक्वल टू पी, न्यू वेरिएबल से दिस implies t equal to p upon s. This implies dt भी निकालना पड़ेगा ना, dp अपॉन s। s तो आपके पास कांस्टेंट है विच इज़ रियल और कॉम्प्लेक्स, इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो हम वेरिएबल मीन्स p, dp यहाँ पे हो जाएगा। dt की वैल्यू आ गई dp बाई s, t की वैल्यू आ गई p बाई s, st की वैल्यू आ गई p। अब क्या रहता है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नंबर 1, व्हेन लिमिट मीन्स t, यहाँ पे t वेरी कर रहा है, t जब ज़ीरो है, तो p की वैल्यू क्या आ गई 0। व्हेन t जब इन्फिनिटी है, p भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। मतलब लिमिट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देयरफॉर वी गेट Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n, कर सकते हैं हम ft इज t रेज टू पावर n, दैट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर, इसको हम पुट कर चुके हैं, माइनस p, t इज p बाई s रेज टू पावर n dt इज dp बाई s। यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, s रेज टू पावर n s, दिस इज टेकन आउट, वी विल फाइंड 1 अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1। ध्यान से देखें, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस p रेज टू पावर n dp, ये बन जाती है आपके पास इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक गामा फंक्शन है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx, दिस इज गामा फंक्शन बाय डेफिनेशन। अब इसको हम गामा फंक्शन की फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल p है, यहाँ पे x है, अगर हम इसको भी p से रिप्लेस करें, व्हाट वी गेट, वी विल गेट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1 dp, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे x है, यहाँ पे p है, सिंपल। अब यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस 1 है गामा n में। इफ वी रिप्लेस्ड n बाय n प्लस 1, व्हाट वी गेट, गामा n प्लस 1, n को n प्लस 1 बना दिया यहाँ पे, तो वी विल गेट 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस p रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो n आ गया यहाँ पे dp, हमारा काम सॉल्व हो गया। दिस इज रिप्लेस्ड बाय गामा n प्लस 1 सिंपली। अब हम यहाँ पे गामा n प्लस 1 राइट करेंगे, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू 1 अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1 गामा n प्लस 1। गामा n प्लस 1 को ऐसे लिखते हैं, दैट इज द फॉर्मूला। तो अब गामा n प्लस 1 क्लियर है, गामा n प्लस 1 बाई डेफिनेशन n फैक्टोरियल होता है, वो सेमेस्टर 1 में भी हम कर चुके हैं। और गामा n प्लस 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय n गामा n, इस टाइप से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1। This becomes the formula for
Laplace transform of t raised to power n, इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज है, तो इसको हम अंडरलाइन ही कर लेंगे. Laplace transform of t raised to power n is gamma n plus 1 divided by this, or n factorial upon Sn plus 1, or simply in short gamma n plus 1 upon s raised to power n plus 1. तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है when ft equal to t raised to power n. Next is the formula number 3 when ft equal to e raised to power at. सिंपल है, तो therefore Laplace transform of ft equal to 0 to infinity e raised to power minus st ft dt. ये तो पहले लिखना ही पड़ेगा. तो hence Laplace transform of e raised to power at equal to 0 to infinity e raised to power minus st ft is replaced by e raised to power at dt. अब यहाँ पर e है, यहाँ भी है, बेसिस सेम, पावर को ऐड कर सकते हैं हम. इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस प्लस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ एस माइनस है, कॉमन निकाल दिया माइनस, इंटू टी डी टी. अब ये कोएफिशिएंट बना टी का. बाई इंटीग्रेटिंग वी विल फाइंड ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ दिस माइनस एस माइनस ए. यहाँ पे एग्जैक्टली वैसी लिमिट लगानी जैसे हम फर्स्ट फॉर्मूला कर रहे थे. जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे यूज़ करेंगे, दिस बिकम्स -1. तो ओवरऑल वी फाइंड 1 अपॉन एस माइनस ए. द फॉर्मूला बिकम्स 1 अपॉन एस माइनस ए. तो वी कैन अंडरलाइन इट. Laplace transform of e raised to power at equal to 1 अपॉन एस माइनस ए. इसको भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं. माइनस ए टी इज दिस. यहाँ पे क्या चेंज है? तो सिंपली व्हेन 1 इज रिप्लेस्ड बाय ई रेज टू पावर एटी, तो सिंपली 1 अपॉन एस आता था व्हेन यहाँ पर जब 1 था, तो लेकिन अब ई रेज टू पावर एटी है, यहाँ पे आ गया एस माइनस ए. एस इज रिप्लेस्ड बाय एस माइनस ए. और वी कैन राइट Laplace transform of e raised to power at ft equal to f बार s माइनस a. जहाँ पे s आना था वहाँ पे s माइनस a आ जाएगा. तो वो तो क्लियर है, s माइनस a आएगा, क्योंकि ये e की पावर में e की पावर ऑलरेडी है, वो यहाँ पे ऐड हो जाती है इस टाइप से. तो s इज रिप्लेस्ड बाय s माइनस a. दिस फॉर्मूला इज कंप्लीट. अब let's go another formula, the formula number 4 when ft is replaced by sine cosine. let us suppose sin 80. जब sin 80 हो तब क्या होगा फॉर्मूला, देखते हैं, चेक करते हैं. सीधा यहाँ से शुरू कर लेते हैं. Laplace transform of sin 80 which is equal to 0 to infinity e raised to power minus st sin 80 dt. सिंपल सी इंटीग्रेशन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू dt. तो कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. ई रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, यहाँ पे लिमिट यूज़ कर लेंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
cos 80। अब 80 का करेंगे, दैट इज द डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू a। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहाँ से सीधा लिख सकते हैं हम यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। ये स्टेप बनता है, तो अब यहाँ पे माइनस एस है और a है, इसको हम कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पे इसका यूज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब t जब माइनस इन्फिनिटी हो, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, ओवरऑल सारा ही जीरो हो जाएगा। जब जीरो करेंगे यहाँ पे साइन जीरो हो जाएगा, ओवरऑल दिस इज जीरो, तो देयरफॉर वी कैन राइट माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो प्लस आ जाएगा a अपॉन एस। तो इसको पहले लिख लेंगे 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी कॉस 80 dt आ जाएगा फिर से। और यहाँ से आगे फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो वी कैन राइट हियर a अपॉन s overall common, first function as it is, integration of second minus e raised to power minus st upon minus s, 0 to infinity limits, minus integration of derivative of first, that is minus sign, minus sin 80 into a, integration is this minus st upon minus s dt, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट देखनी पड़ेगी, ये प्रोडक्ट फंक्शन है, अपर लिमिट e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट शुड बी जीरो, एंड माइनस ऑफ जीरो। अब लोअर लिमिट यहाँ पे कॉस जीरो दैट इज 1, e रेज टू पावर माइनस ऑफ जीरो, यहाँ पे कुछ रहेगा, तो देयरफॉर वी कैन फाइंड हियर विच इज इक्वल टू a अपॉन s ओवरऑल कॉमन, अपर लिमिट जीरो यहाँ पर, माइनस लोअर लिमिट दैट इज cos जीरो इज 1, दिस इज 1, दैट इज 1 अपॉन s, प्लस ही आ जाएगा ये 1 अपॉन s, यहाँ पे हमारे पास मिलता है ये माइनस, यहाँ पे लिमिट्स इज दिस, और कॉमन यहाँ पे है a माइनस एस माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ही हो गए, तो माइनस वैसे ही रहेगा, कॉमन इज a बाई एस, a अपॉन s इज कॉमन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी साइन 80 dt। व्हाट इज दिस? दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। इसको हम फिर से लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, दैट इज इक्वल टू a अपॉन s टाइम्स 1 अपॉन s माइनस a अपॉन s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। अब इसको हमने कॉमन निकालना है, दिस इम्प्लाइज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। अब देखते हैं इसको कॉमन कैसे करेंगे, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, इसको माइनस को इधर लाए, प्लस a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, इसको कॉमन किया, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, ये कॉमन आ गया, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पे इस टाइप से आ गया, दिस इम्प्लाइज, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके वी कैन राइट हियर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर या एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वट एवर अपॉन एस स्क्वायर,
Laplace transform of sin at which is equal to a upon s square. अब यहाँ पे s स्क्वायर है, यहाँ भी s स्क्वायर है, ये कैंसिल हो सकता है इजीली, तो therefore we get Laplace transform of sin at equal to a upon a square plus s square. This is the formula for Laplace transform of sin at. इस टाइप से हम फॉर्मूले को फाइंड करते हैं. Laplace transform of sin at equal to a upon a square plus s square or s square plus a square. Similarly, number 5 फॉर्मूला पुट करेंगे when ft equal to cos atu. तो Laplace ट्रांसफॉर्मेशन इज cos at, वो आप ट्राई करेंगे, दैट इज इक्वल टू s अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर या s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस इज द सेम थिंग. ये फॉर्मूला हमारे पास cos के लिए भी आ जाएगा. जैसे साइन के लिए किया वैसे ही cos के लिए आप ट्राई करेंगे. अब फॉर्मूला नंबर 6 एंड 7 भी ऑन द सेम वे करेंगे. द फॉर्मूला नंबर 6 इज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at. हाइपरबोलिक में क्या आ जाता है, e की पावर्स आ जाती है. जैसे कि डेफिनेशन है आपके पास साइन हाइपरबोलिक x e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन 2, और cos के लिए यहाँ पे प्लस आ जाता है. तो इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे ई पावर्स में. तो ओवरऑल द फॉर्मूला बिकम्स a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे एस स्क्वायर पहले लिख लेना क्योंकि माइनस का प्रॉब्लम आ जाएगा. तो नंबर 7 Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक at that should be equal to s upon s square minus a square. तो ओवरऑल ऑल फॉर्मूलेज आर क्लियर. तो ओवरऑल हमने जितने भी एलिमेंट्री फॉर्मूलेज ट्राई किए हैं वन बाय वन फिर से लिख लेते हैं. नंबर 1 पोजीशन में क्या था, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन s. नंबर 2 में क्या था, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to power n that is equal to gamma n plus 1 upon s raised to power n plus 1, where gamma n plus 1 is n factorial, और यहाँ पर s must be greater than 0, अदरवाइज ये इन्फाइनाइट हो जाएगा. नंबर 3 Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power at, तो वो था 1 अपॉन s माइनस ए. बिल्कुल सारा प्रूव किया. नंबर 4 Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at दैट इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वन इज द सेम थिंग. नंबर 5 Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at that is equal to s upon s square plus a square. Number 6 Laplace transform of sin hyperbolic at, यहीं से आ जाएगा sin hyperbolic, यहाँ पे सिंपल माइनस करना है. that is equal to a upon s square minus a square. Number 7 Laplace transform of cos hyperbolic at इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये सारे फॉर्मूलेज हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे. थैंक यू सो मच.